बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 72 न्यूज़ ते टीपू रांझे दी बैठक ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ। प्रोग्राम सारे ही बड़े खास ने पर आज दा कुछ ज्यादा ही खास है। एक ऐसी दबंग शख्सियत, एक ऐसी नाडर और बेबाक खातून ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਤਗੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂ मतलब एक फन फेयर ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ मतलब ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਤੇ मोहतरमा ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਲੇ ਗੱਪ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਐਡੇ ਡਾਢੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ 2007 ਦੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ 2021 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾ अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਕਰ ਛੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਤਨੀ ਆਤਿਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਧੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਬੰਗ ਤੇ ਨਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਪਾਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨੱਸ ਗਏ ਸੀ ਤੇ जी सॉरी बोलो थोड़ा ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਥੋੜਾ ਵਾਇਸ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਧਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾ मतलब ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ मतलब ਦਦਿਆਲ ਨਨਿਹਾਲ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਝੰਡੇ ਗਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ मतलब ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਮਾਡਰਨ 3 ਲੈਂਗੁਏजेस ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਮਸਤਾਨਾ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਿਊਮਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹਿਊਮਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿੱਚੋਂ मतलब ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੇ मतलब ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ मतलब ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯੋਗਾ ਵੱਲ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ मतलब ਡਾਂਸ ਬੜਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ मतलब ਇਤਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।
ਅੱਛਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਫੋਕ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਕੋ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਅਤਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਿੱਧਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਝੂਮਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਯੋਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ PhD ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ PhD, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੀਮਿਆਈ ਜੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਕਚੁਏਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਡਾਂਸ ਤੇ ਯੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਦੋ ਦਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਗੋਰੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੋ ਕਮਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਗੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਪੋਸ਼ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਮੁਜਦਾਰੋ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਯੋਗਾ ਦਾ ਤਲਕ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਰੀਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਔਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ 1-2 ਬੱਚੇ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਜ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਤੇ सवाल आपने बहुत अच्छा किया, और पहले मैं आऊंगी इस बात पे कि जब हम कहते हैं ना कि शादी के बाद बड़ा लड़कियां मतलब बड़ी हो जाती हैं, मतलब साइज में बड़ी हो जाती हैं। तो वो ये कि एक तो हमारा जो इलाका है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम में जो मुख्तलिफ नस्लें हैं
जिन्होंने मिल के जो है ना ये सब कॉन्टिनेंट का रीजन, मतलब इसमें अफगान भी आ गए, इसमें कश्मीरी आ गए, ईरानी आ गए, जो वहां पर रहते थे ड्रेविडियंस वो आ गए, तो अरब भी आ गए थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं हमें लगता है बहुत ज्यादा है पर नहीं। तो पंजाबी, तो ये पंजाबी खुद जो नस्ल है ये बहुत मिक्स्ड नस्ल है, इसमें बहुत सारी दूसरी नस्लों का जो है ना वो है, इसमें कहना चाहिए इन्वॉल्वमेंट। तो हम सारे जो है ना, एक तो पहली बात है कि आजकल जब बात होती है ब्यूटी स्टैंडर्ड की, तो हमें एक पतली सी गोरी लड़की दिखा दी जाती है कि भाई ये देखें ये फिट है, ठीक है भाई अल्लाह के बंदो ये भी देखो कि उसकी जो नस्ल क्या है, उसकी ग़िज़ा क्या है, उसकी आबो हवा क्या है। तो हम उसके जो है, हम ये नहीं कि वो अच्छी और हम गलत, वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह सही है। दूसरी बात है कि जब सेहत की बात आती है तो वाकई औरतें बिल्कुल ध्यान नहीं देती, पाकिस्तान में स्पेशली। उनको लगता है कि वजन लूज करना या मतलब पतले होना ही जो है ना वो फिटनेस की निशानी, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप मोटे होके भी जो है बड़े सेहतमंद हो सकते हो, और आप जो है पतले होके भी आप बहुत सेहतमंद हो सकते हैं। मतलब सॉरी मैं यहाँ पे आपको काटूंगा कि यानी साड़ियां इंजे पतलियां पतलियां लगियां माइयां पूरी बोरी चा लेनियां ने मतलब चौलां दी, ते शहरां वालियां चंगियां हेल्दी लगदियां ते शापर अद्धे किलो दा फद गया दा कड़ोल चढ़िया हुंदा। मतलब हाँ, मैं वही बात करने लगी हूं आपसे कि जेड़ा तुसी सेहत दी गल जदों करदे हो ते 10 किलो दा तुसी उर्दू में बोल सॉरी हाँ जी 10 किलो का आपने उठाया हो, 1-2 मील आप आराम से चल लें, ये होती है सेहत। हाँ। अब उसमें जब आप ये सब कुछ कर सकते हो, दूसरा औरतों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने घर संभालना होता है, बच्चे संभालने, वालिदैन को मतलब देखना होता है। मतलब हमारा माहौल और मुआशरा इस तरह का है कि औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हालांकि हम उनको काउंट नहीं करते, पर वो मर्द से ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए ये वाकई जरूरी है कि हम खाना क्या खाएं, और बिल्कुल वाकई कोई इंफॉर्मेशन कोई मतलब है ही नहीं कि क्या इसमें करना क्या है। तो उस लिहाज से मैं सॉरी मैं करूंगा, मैं ये कहूंगा, मतलब मैं पंजाबी च आखां ना तुसी उर्दू विच लग्या जे शुगर लग्या कि मतलब साडा कल्चर भी नहीं ना डेवलप। मतलब कोई भी लड़की जेड़ी है खास करके मेरे किसी भी कमेंट ते वीडियो ते बेचारी मैसेज कर देवे ते मैं इन्हां ना हल्के होके पै जांदे ना साडे बंदे ना। सेम तुहाडे नाल होया, मैं जितने तुहाडा पहला पोस्टर रखिया ते मैंने पता है बिस्मिल्लाह करके फ्रेंडशिप रिक्वेस्टां ते मैसेज ते सारा कुछ आ गया, ते बेचारियां दियां बहना जेड़ियां ना सिर्फ इनबॉक्स ही करदियां, पेज उन्हां मेरा फॉलो कीता। तुसी दसो कि मतलब तुसी की कीते, किस तरह साडियां मतलब बीबियां जेड़ियां नो तुहानू अप्रोच कर सकदियां, लेसन तुहाडे ले सकदियां, या तुसी उन्हां मतलब किस तरह कन्वे कर सकदे हो अपना ये सारे जेड़ा तुहाडा सेटअप है। अच्छा, इसमें मजेदार बात है कि औरतों को कुछ नहीं करना मर्दों को। इसमें मर्दों को इसलिए करना है क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि जब आप कहीं पे जाते हो, जब आप सर्कस जाते हो देखने, सर्कस में चीजें होती हैं अजीब किस्म की, आप बड़ा खुश होके देखते हो, आपको बड़ा इश्तियाक भी होता है। हाँ। क्या है मामला। अब हुआ ये कि हमारे मर्दों ने हमारी औरतों को सर्कस का ही बना दिया कि उनको घुसा के कोनों खुरदरों में मतलब काम भी लेने उनसे, सारा कुछ करना है। क्योंकि देखो औरत इंसान है, वो कोई मतलब उसका भी जो है मर्जी होती है, वो बात कर सकती है, उसका भी दिल करता है कि मैं ऑक्सीजन लूं, मैं बाहर जाऊं। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। हमारा मुआशरा जो है उसमें लिमिटेड, लेकिन इसमें कसूर मर्दों का भी है कि पहले उन्होंने एक चीज को बिल्कुल ही छुपा दिया और फिर उनको एकदम से उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया कि ओ हो मतलब जिथे भी नजर आंदी फड़ लो इन्हें, ठीक है ना। मतलब अब सड़कें तो आप लोगों ने कर दी है ना कि जी यहाँ पर तो हमारा डेरा है। अब औरत को मजबूरी में जाके काम करना है या जाना है, वो तो बेचारी जाती है। बल्कि यहाँ पर ये भी मसला है कि जब उसने कोई जिम चले जाते हैं मर्द वगैरह कसरत करने के लिए, वो तो औरत बेचारी जो होती कहती मैं ना ही जाऊं, बेहतर है घर ही बैठी रहूं, जो चार मुझे मतलब डब्बे में भी पैक होके औरत जा रही होगी ना, मर्दों को पता चलेगा ना, तो वो जरूर उसको बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मर्दों को ये है कि जिस तरह की मैं बात करी सकाफत की, कि जैसे अभी लोहड़ी गुजरी है पिछले दिनों, तो आपको इंडियन साइड की जो है ना आपको नजर आ जाती है औरत जो है गिद्दा कर रही होगी, उसके साथ जो मर्द देख रहे होंगे तमीज तरीके से, कोई मसला नहीं, वो एक उसको देखेंगे कि उसने दुपट्टा शलवार कमीज पहननी होगी बड़ी तमीजदार तरीके से ना। तो ये हमारी तरफ जैसे जैसे कम होता जा रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन मर्दों में और बढ़ती जा रही है। तो ये मतलब मेरे अम्मी जी दे दौर विच या थोड़ा मेरे बचपन चो भी
कुड़ियां फुल चुनन जांदियां ने, गिद्धे समियां, ये सारा बड़ा लगदा ही, लेकिन उसले कोई ना कोई एडा बंदा नोट करदा, हुण ही कोई बाली आग लग गई है मुआशरे विच। हाँ, तो बस वो फिर हमें ही ठीक करना है ना कि अगर ऐसे है तो उसमें एक तो ये कि हम जब डांस की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में इंडिया का कोई आइटम नंबर आता है, हमारे ज़हन में हमारे इतने खूबसूरत गाने हैं, बाबरा शरीफ पे फिल्म आए हुए, शबनम पे फिल्म आए हुए, और उस मतलब अगर ठीक है वो बीच में एक लैग आ गया कि जिसमें नहीं अच्छी फिल्में बनी, लेकिन उससे पहले तो बहुत रिच कल्चर रहा है। तो वो ना हमारे बच्चे, उनको गानों का पता है ना, उन पे डांस करते हैं, तो भला वो कोक स्टूडियो वालों का कि वो जो फोक सॉन्ग्स को निकाल काट के बाहर ना उन्होंने वो वेस्टर्न म्यूजिक डाल के जो सुनो सुनो सुनो, सही बात, अल्लाह के वास्ते सुनो। हाँ। तो अब पता चला, वरना नहीं पता। तो वो वजह ये भी है कि जब हम डांस का सोचते हैं तो हमारे ज़हन में आइटम नंबर आता है, जबकि डांस बहुत खूबसूरत चीज है और बहुत मतलब तहजीब याफ्ता, और जितनी भी तहजीबें गुजरी हैं, मतलब अरबियों का भी बेली डांस है भाई, और वो करते हैं अपनी शादियों पे। मतलब उनका जो वो एक कहते हैं ना, उन्होंने मर्दों ने भी पहना होता है, दबके होते हैं इनके लेबनान में, तो वो सारे मिल के करते हैं। तो हर हर मुल्क का, हर तहजीब का होता है, तो उसको करने का एक तरीका होता है। तो वो जब हम तरीके से दूर हुए हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन डेवलप होगी है, तो अब उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके आना है। मतलब मुजरे अल्लाह बाला हो गए हैं, असल जड़ा कल्चर है वो मुजरा इज अगेन समथिंग डिफरेंट। मुजरा भी जो, अगर आप अमराओ जाने अदा वाला मुजरा हो तो वो तो बड़ा ही मुश्किल, मतलब कथक डांस, उसकी पूरी रियाज होता है, उसका पूरे इम्तिहान होते हैं उसके, वो बड़ा मुश्किल होता है। मैंने भी कोशिश की थी सीखने की, मैं भाग गई थी, इतना मुश्किल होता है वो। ठीक है। अच्छा मारिया, ਤੁਹਾਡਾ पेज एक ਤੁਸੀਂ जोगी ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ पेज ਫਾਲੋ ਕਰਨ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਢੇਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਪੜਦਾ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਦਾ, ਫੈਜ਼ ਖਾਨ। ਚਾਹੇ ਪਠਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਧੀ ਹੋਵੇ, पेंडू ही होता है। मतलब साडी जेडी पिंड दी सोच, जेडी ਅਸੀਂ शहरी मॉडर्न नहीं, साडी सोच एक ही है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤ ਆ, ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਜਦ ਦੋਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ मतलब इमोशन डेवलप हो जाते, ठीक है, क्योंकि लिमिट जेडी वो रखनी होंदी है लड़की वालों तो मे बी जस्ट फ्रेंडशिप ही होवे, पर लड़के वालों नहीं रही। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ फ्रेंडशिप ही रवे या एक अच्छे दायरे ਵਿੱਚ ही रवे, वो बोझ ना बन जाए। एक तो आप सवाल काफी सारे इकट्ठे कर देते हैं। अच्छा, पहले ना मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। आपने कहा पठान, पठान नहीं होता, इट्स पश्तून या पख्तून। अच्छा, इसके पीछे ना हम किसी दिन प्रोग्राम करेंगे कि पठान क्यों नहीं होता, या जिसने किसी ने पूछना है वो मेरे पेज पे मैसेज करके मुझे पूछे, मैं बहुत अच्छा इसका जो है ना मुफस्सिल तफसील में आपको ना जवाब दूंगी। ठीक है, हाँ जी। तो अच्छा, जहां तक बात वही वाली बात आ गई कि जब एक चीज को आप इतना क्यूरोसिटी डेवलप कर दोगे तो वो चाहे आपको आम हालात में अच्छी ना भी लगनी हो, आपको एक लड़की आ गई है ना तो बस वो ही जो है ना आपकी कायनात बन जाती है। अच्छा, लड़की तो लड़के देखती रहती ना, मतलब वो छुप के भी देखती रहती, मतलब छुप के मतलब जान के नहीं देखती, मतलब लड़के उनको नजर आ रहे होते हैं, तो इसलिए उनको वो वाली क्यूरोसिटी नहीं होती जो मर्दों को होती है। ठीक है। तो अगर आप बातचीत आम कर दो, क्योंकि बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, आपको एक दूसरे के ख्यालात का पता चलता है, आप तो फिर मर्द भी जो थोड़े से ना जो है ना रिलैक्स हो जाएंगे, उनको भी हर दूसरे दिन मोहब्बत नहीं होगी, ठीक है, उनको भी जो है ना होगा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं इस लड़की से अगर बात करूं तो ब्याह ही करना मैं तो। और लड़कियां भी ऐसी होती हैं, ये बात नहीं कि खाली लड़के ही ऐसे होते हैं, लड़कियां भी, हमारा मुआशरा और माहौल ऐसा है कि लड़कियों को भी लगता है वो इसने बात कर ली तो अब तो बस रिश्ता आने वाला है, यानी अच्छा मतलब लड़के मतलब रिश्ता आने वाला है ना, मतलब तो लड़कियों को भी चाहिए कि, और अक्सर फिर गलत फैसले भी हो जाते हैं जल्दबाजी में। हाँ। क्योंकि आप जो है चीजों को उस तरह नहीं सोच रहे थे जिस तरह आपको सोचना चाहिए, लेकिन उसमें आपका कसूर भी नहीं है, क्योंकि मुआशरा हमारा जो है वो और तरह का है, तो फिर उस हिसाब से ये हो जाता है। तो इसमें उस आपके जो पख्तून पश्तून भाई हैं उनका कसूर नहीं है, बस ये एक आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा ये। ठीक है। मारिया, एक और गल दसो,
ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰਸ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਹਿੱਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ कोई खास वजह किस तरह अट्रैक्ट करते हो बंदियां मतलब तुसी देखिए जिस तरह मैंने ना आपको मतलब मैसेज किया कमेंट किया आपकी वीडियो एक म्यूचुअल फ्रेंड है हमारे उन्होंने आपका जिक्र किया मैंने कहा देखूं तो वो बात ही होती है कि कहते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक तो जब वो आपका जो मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बहुत ग्रेट माइंड है मैं तो भी स्टूडेंट ही कंसिडर करती हूँ अपने आप को लेकिन वो ये होता है कि आपको वो चीज अच्छी लगती है आपको उसमें जो है ना कशिश होती है जो चीज जो आपके ख्यालात से मिलती जुलती हो ना तो जब आप अपने आप को बंद नहीं ना करोगे आप अपने आप को हर तरह के आइडिया के लिए खुला रखोगे कि हाँ चलो ये मैं सुन लेता हूँ मतलब जरूरी नहीं कि मैं इससे अग्री भी करूँ पर बहुत सारा ये होता है कि जब मैं लोगों से बात करती हूँ बहुत सारे लोगों से मेरी बहुत बातचीत होती है मैं उनसे अग्री नहीं करती लेकिन उनको मैं ये जरूर देती हूँ स्पेस कि वो अपनी बात पूरे भरपूर तरीके से मेरे साथ कर लें मैं उनको जो है मद्दे मुकाबिल जो है मैं उनको पॉइंट्स दूं मैं उनकी रिस्पेक्ट करूं किसी भी तरह मेरी उनकी रिस्पेक्ट उनकी इज्जत मेरी नजर में कम ना तो इस वजह से शायद लोगों को जो है ना कंफर्टेबल फील करते हैं वो मेरे साथ बात करते हुए और लेकिन ये है एक कि दोस्ती हो जाती है मेरी लोगों से क्योंकि शायद यही वजह है कि मैं इज्जत बहुत करती हूँ लोगों की उनकी व्यूज की तो शायद यही वजह है अच्छा चलो एक और गल आई दसो आई काबू आए हो थे मतलब ਤੁਹਾਡਾ मैं वेख्या मारिया मतलब इतना यूनिवर्सिटी जितने साल मैं भी रहा तुसी भी साड़ियां लड़कियां च ना एक खास किस्म दी झिझक होंदी है मतलब एक अंडर प्रेशर आंदी है मतलब मैं बड़ियां कॉन्फिडेंट लड़कियां देखियां जेहड़ियां अपनी लाइफ च मतलब कुछ भी कर सकदियां ने लेकिन घर दा प्रेशर मुआशरे दा प्रेशर इस चीज दी वजह तो ना बंदियां लेकिन ਤੁਹਾਡੇ यूनिवर्सिटी टाइम तो लैके हुण तक मतलब चूंकि पर्सनल चीज़ां ने मैं मेंशन नहीं करता बट तुसी बड़े बेबाक स्टेप लै डर नहीं हुंदा तुहानी ना इं दियां चीज़ां जिंदगी च खतरा नहीं महसूस हुंदा या मेरिया दियां बहना वास्ते मतलब लिमिट च रह के कोई अच्छा जा सजेशन भी देवो उसमें ना मेरी जो मेरे घर वाले हैं उनको मैं दूंगी क्रेडिट यहाँ पर क्योंकि मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि मेरी नानी वो डॉक्टर थी सर्जन थी मतलब नानियां दादियां लोगों की जो है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती उनका जो है वो घर ही होती हैं और वो मतलब आपको कहानियां सुनाती हैं मेरी नानी ने तो मुझे मैथ्स भी पढ़ाई है अंग्रेजी भी पढ़ाई है ठीक है मैट्रिक तक हाँ तो वो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में हाउस जॉब की है उन्होंने अकेले ट्रैवल किया तो इसमें जो उनके और वो सैयद घराने से हैं तो उनके घर में फुल जो है ना बुर्का और ये सब होता था सिवाय उनके ठीक है उनके जो वाले थे जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हुए उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया तो ये बापों से ही होता है ना सिलसिला शुरू होता है फिर मेरे अब्बू ने भी फ्री हैंड दिया फिर मेरी अम्मी ने भी सपोर्ट किया खाली बाप की सपोर्ट नहीं थी माँ की सपोर्ट भी बहुत जरूरी थी तो ये मेरे घर वालों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने डरना नहीं है हम आपके पीछे हैं आपको अच्छा बुरा रास्ता हमने बता दिया हमें आप पे फुल एतमाद है कि आप जो है ना कोई गलत स्टेप लाइफ में नहीं लोगे लेकिन अगर आपको कोई मुश्किल आती है आप हमसे बताओ हमें आके बताओ हम आपका साथ देंगे चलो मतलब हाँ जी कंटिन्यू सॉरी बस यही कहूंगी कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये माँ बाप की देन होती है ये सिर्फ वो ही आपको दे सकते हैं वरना मैं वो लड़की होती थी कि कोने में मतलब ऑब्वियसली आपने मुझे तब तो नहीं देखा आपने तो मुझे यूनिवर्सिटी में देखा लेकिन बचपन में मेरे इतने को हालात बुरे होते थे कि अगर मुझे कोई देखता था तो मैं रोना शुरू कर देती थी चलो अच्छा मारिया ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਿੱਤਰ ਰਹਿ ਨਾ ਬਟੇਰ ਰਹਿ ਕਾਇਦਾ ਅਰਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿ मतलब कंफ्यूज जा हो गए ये कितना जरूरी है जेडी मादरी जुबान है वो तो देखें बात ये कि हम थोड़ा सा ना इजी भी हो जाएं जरा लोगों के साथ क्योंकि 200 साल की कॉलोनियल हिस्ट्री है ठीक है तो उसका जो है ना वो असर तो रहना है इतनी जल्दी से नहीं होना मतलब वो अंग्रेज आए और प्लस पंजाबियों को तो खासकर उन्होंने टारगेट भी किया क्योंकि रंजीत सिंह जो ना वो खलो गया
उनके सामने। ठीक है। तो वो तो एक तो वो भी वजह है कि पंजाबी फिर आर्मी में भी जाते थे, उन्हें पता था ये जनाब गबरू हैं, ये बड़े निडर हैं, इनका ये सीन है, तो उन्होंने खासकर टारगेट किया, उनको महसूस करवाया कि जो आपकी जुबान है ये नीची जुबान है, मतलब ये कोई इस पे इतना फख्र ना महसूस करें। तो ये एक रीइंफोर्स्ड कहना चाहिए ना, ब्रेन वॉशिंग हुई है, और 200 साल उन्होंने ये काम किया है बकायदा। इसके बारे में हमें बताया तो नहीं जाता, इतना पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली जो हमें तारीख पढ़ाई जाती है वो बड़ी सिलेक्टेड है, और बड़ा वो कहना चाहिए एक व्यू है, मतलब किसी एक बंदे का व्यू है, और वही हम सबको जो है ना रट्टा लगवाया जाता है। तो लेकिन जब आप तारीख पढ़ो और आप देखो कि जो जो पंजाबी है, मैं पाकिस्तान बनने की बात नहीं करी, मैं पहले की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब का बंटवारा हो गया। जब हम बंटवारे की बात करते हैं तो पंजाब का ही हुआ बंटवारा। एग्जैक्टली ठीक है, बाकियों में से किसी ने इतना बंगाल का हुआ, पंजाब का हुआ, और कश्मीर बेचारा अभी तक जो है ना वो सफर कर रहा है, बाकी मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ। तो जब पंजाब का इतना वो कहना चाहिए जरखेज और इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब उसके पीछे भी वजह थी, चर्चिल ने पूरी एक प्लानिंग के तहत ये मैप बनाया और हमारे सर पे मुसल्लत किया कि ये करो। तो उसमें अब आप ये देखते हैं कि एक मेजॉरिटी पाकिस्तान में आ गई जी, और कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया में है। अब इंडिया वालों का अल्लाह भला करे, उन्होंने अपनी जुबान को जो है ना कायम रखा। एक तो वो माइनॉरिटी भी है, एक इसको मैं कहूंगी कि थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल ये इफेक्ट है कि आपके ज़हन जो आप जब माइनॉरिटी में होते हो ना तो आप ज्यादा ख्याल करते हो, हाँ, कॉन्शियस होते हैं आप। हाँ, बिल्कुल, कि भाई अगर मैंने ना किया तो फिर कौन। हम थोड़े से शोधे हो गए हैं बेसिकली, जो पाकिस्तान वाले 62% है ना, सा इजी ले लिया, मतलब तो हम शोधे हो गए हैं, तो फिर थोड़ा सा वो गोरा बाबू वाला जो कल्चर है वो भी थोड़ा सा हमें, मतलब अब तो लोग उर्दू भी नहीं बोलते अपने बच्चों के साथ, आप पंजाबी तो छोड़ दें, उर्दू नहीं बोलते। मैं तो पाकिस्तान में देखती हूँ काठे अंग्रेज माशाल्लाह काफी हैं, ताकि आप अगर आप नहीं उर्दू बोलोगे तो गोरे ने आके उर्दू सिखानी है, किसने सिखानी है उर्दू, मतलब आपने ही सिखानी है ना। बिल्कुल। तो मतलब मेरी तो नानी नाना दोनों को अंग्रेजी आती थी, पर मजाल है कि वो आपस में पंजाबी के अलावा किसी और जुबान में बात करते, और हमसे भी पंजाबी और उर्दू में बात करते कि भाई सारी जुबानें, शायरी करते थे मेरे नाना अबू और नानो दोनों उर्दू में और पंजाबी में। तो खाला भी बल्कि अभी भी मेरी जो है ना वो शायरी करती हैं, लिखती भी हैं किताबें। तो वो हमारे घर में तो ये बड़ा आम रिवाज था। तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई कि जहाँ पे अंग्रेजी को हवा नहीं बनाया गया। ठीक है, ठीक है। तो बाकियों को भी चाहिए कि कहना चाहिए कि हम आखिरी एक जो है नस्ल एक तरह से रह गई, क्योंकि अब चीजें बहुत तेजी से जो है ना वो बदल रही हैं, बहुत तेजी से। बिल्कुल। और ग्लोबलाइजेशन ये और सोशल मीडिया की वजह से भी खास करके, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम है, और कोई अंग्रेजी आना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसके बहुत फायदे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है जी। मतलब अगर ईरान ने फतह किया होता इस तरह दुनिया, तो आज हम सारे फारसी बोल रहे होते। ये तो उसकी तारीफ पे बेस करता है ना। लेकिन आपकी अपनी जुबान, आप अपनी जुबान से जितना जितना दूर होते जाओगे, आप अपनी कल्चर अपनी सकाफत से उतना दूर होते जाओगे। और फिर बाद में आप जब आपसे पूछा जाता है, जब आप बाहर रहते हो, आपसे पूछा जाता है आप कहाँ से हो, तो फिर आप क्या बताओगे, क्योंकि आपके एक्सेंट से तो उन्हें साफ पता चल जाएगा आप यहाँ से नहीं हो। हाँ जी, बिल्कुल। जितनी भी आपके रंग रूप से भी उन्हें पता चल जाएगा कि आप यहाँ से नहीं, तो फिर आप कहाँ से हो, तो फिर जो कहाँ से हो उसको ओन करो ना। तो वो हमने ही करना है, वो किसी ने नहीं मैं आके करना। नहीं ਅਸੀਂ ਹੁਣ बिल्कुल यही करने आप है, और यही ट्राई टीपू राजा भी लगे। मुझे खुशी हुई जब मैंने आपका देखा, वीडियोस देखी, मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम कर रहा है इस पे, और इतना अच्छा कर रहा है और इतना प्यारा काम कर रहा है, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। अच्छा मारिया जी, पानी पीना है ते पी लो। प्रोड्यूसर साहब ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਤੜਕਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭੰਵਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ। ਭੰਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। वो एक ही बंदा था जिसने जो है ना कोशिश की थी, पर जवाब उसको फिर मैं सेट देती थी। पर वो अच्छे काम लगा हुआ है। अब इंडिया के जो है ना, इंडिया की तरफ मिसाइल अपने मुंह से जो मिसाइल जो होते हैं ना उसके जाते हैं। मतलब अच्छा एंकर बन गए हैं, ठीक हो गया, ठीक। मतलब पर वो एक वाहिद बंदा था जिसने पंगा लिया था मेरे से, लेने की कोशिश की थी।
ठीक है। तो अब लेकिन वो फिर उसने फिर मेरे ख्याल से जो उसका ये टैलेंट था बिला वजह जो है ना पंगे लेना, तो फिर उसने बहुत अच्छा कैरियर अपना जो है ना सिलेक्ट किया लाइफ में। और बड़ी खुशी होती है मुझे तो उसकी वीडियोस देख के, क्योंकि हुन ऐसा ही कम लगा। चलो बड़ी गल। अच्छा एक और दसो, मैं अपना ही अक्सर गल करना मेरा मतलब साहब है कुएं दे मेंढक वाला। जो मैं मंडी बहुदीन तो उठ के ते पहली बार यूनिवर्सिटी विच आया ते पढ़े आई सिंधी हम, पंजाबी हम, बलोची हम, पठान हम, एक परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम, यही पढ़ के तराने सुन के कहदे सुन के लगदा ही बा मंडी बहुदीन या मेरे नाल एक दो जिले असी पाकिस्तान आसी। जो मैं यूनिवर्सिटी च आया तो मैं वेखी बा इतनी डाइवर्सिटी है, गिलगिती ने, बल्तिस्तानी ने, कश्मीरी ने, सिंधी, बलोची, पठान, अगो पंजाबियां दे भी असी अगो सराइकी वखरे ते मतलब जितने ज्यादा अच्छे कल्चर और तहजीबा और प्यारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटियां च उतने इस बेस नो लैके लसानी बेस ते लड़ाइयां भी ने, इख्तलाफ भी बड़े ने और बड़ा मतलब ਇਹਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਂ फिर पंजाबी च आ गई हाँ। तो हाँ, वो ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी आई थी ना तो मुझसे लोगों ने पूछा कि यहाँ पे काउंसिल सिस्टम होता है। कायदे आजम यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र करूंगी जहां से हम दोनों हैं, और बहुत अच्छा क्योंकि वहां पर जो है ना हर जो भी सूबा है या लोग हैं, मतलब सूबा जैसे कि पंजाब का सूबा बहुत बड़ा है, इसमें सराइकी अलग है, मतलब अलग इन अ सेंस कि उनकी जुबान है और कल्चर जो है बेशक पंजाबी से मिलता जुलता है, पर वो एक बेल्ट है पूरी सराइकी ना, तो हर एक को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला। और जो लड़के थे तो वो बहुत आगे थे इसमें कि उन्होंने काउंसिल्स बनाई हुई थी, जो पख्तून काउंसिल थी, ਤੁਹਾਡੀ भी सी एक हाँ जी खच काउंसिल थी जी, मतलब पंजाब काउंसिल, तो ये सारा एक था। फिर वो जब हमारे फन फेयर होते तो सब अपने इलाकाई रक्स आके जो करते थे। तो वहां पर ये कि जो हम खवातीन थी ना, हमें ये होता था कि जैसे हमें काट दिया है, हमारा जो ना कहते ने ना पत्ता साफ कर छड़िया इन्होंने, मतलब हमारा भी दिल करता था कि हम भी जो है पार्टिसिपेट करें। म्यूजिक लगा है तो दिल हमारा भी करता था, और हम खड़े होते थे ऐसे बुत बन के कोनों में कि अब हम क्या करें। तो वो लड़कों ने सारा जूम जो है ना वो सारे जो है आ जाते थे। हाँ, बात मैं ये करने लगी थी कि जब मैं आई थी ना तो मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से हो। अच्छा, कि मैं लाहौर से तो आई थी, पर मैं लाहौर से उसरा नहीं हूँ कि, लेकिन मैं अपने आप को लाहौरी ही कहती हूँ क्योंकि मैं पैदा लाहौर में हुई और मैंने काफी अरसा लाहौर में गुजारा। काफी मेरी पढ़ा जो है तालीम मेरी मैंने लाहौर में ही हासिल की। तो मैंने कहा मेरी अम्मी लोग तो ईरानी हैं, ठीक है, और मेरे अब्बू लोग जो हैं वो तो सिंध से हो गए, लेकिन वो उर्दू स्पीकिंग हैं, तो वो मुहाजिर भी हो गए। तो वो मुझे लड़की मुड़ के देखती है, यानी कि तुम सारे सूबे की सूबों की पैदावार हो इधर उधर से। वेरी नाइस, गुड हाँ, मुल्तान से हैं तो सिराइकी भी हैं। तो इस तरह करके ना बड़ा ही मुझे कहती तुम्हें तो कोई मसला नहीं होने लगा, हर काउंसिल का लड़का ना आके तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। मैंने कहा मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको मेरा पता नहीं है अभी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा तुसी एक और मैं दसो कि आखिरी सवाल करा ਤੁਹਾਡੇ पैगाम तो पहला, तुसी मेरी नकल भी लाई कोई उस वेले कोई पैरोडी मेरे ते बनाई, हर बंदे ते बनाई। मैं चाहना कि मेरे व्यूअर्स नाल ओ भी शेयर करो किवें ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया आया की तुसी मेरे बारे च एक थिएटर लाया। अच्छा, मुझे शौक था थिएटर का ना बहुत ज्यादा, पर हमारी यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली वो कहना चाहिए सहूलियात नहीं थी। तो मैं ये करती थी कि मैं जब हमारा गोल्डन नाइट खवातीन की मतलब जो हॉस्टल में रहती थी लड़कियां, उनका वो कोई 500 के करीब लड़कियां थी, तो उनका एक फंक्शन होता है जो कि खास और उन्हीं के लिए होता है, लड़कियों के लिए तो उसमें ऑब्वियसली फिर लड़का आपको खुद बनना पड़ता है। हाँ। क्योंकि लड़कियां लड़कियां कर रही होती हैं, तो वो मैं सारा लिखती थी करती थी। तो ऑब्वियसली लोगों को पता होता है कि जो कपल्स हैं या जो मिल रहे हैं, क्योंकि वो हॉस्टल के सामने ही सारी वारदात होती थी ना। हाँ। तो वो सबको पता होता था, तो वो उसको जरा थोड़ा सा मजाक में तो कभी क्योंकि आपका नाम रांझा था तो आपका नाम ही बड़ा रोमानवी है वैसे ही रांझा से, तो वो उसमें फिर वही गाना था अक्षय कुमार का, एक हीर थी और था एक रांझा। तो वो गाना खास कर इसलिए डलवाया गया क्योंकि हम बात कर रहे थे एक खास कपल की जो माशाल्लाह से अल्लाह मियां ने उनको इकट्ठा कर दिया। तो वो हम इसी तरह कहते शुगल मेला एक हमारा जो होता था, तो उसमें मैं लड़का मैं ही बनती थी। और मैं इतना अच्छा लड़का बनती थी बकौल लड़कियों के कि उनमें से एक लड़की स्टेज पे आके उसने मुझे प्रपोज किया, और एक और लड़की कहती कि मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उससे मेरी शादी हो नहीं सकती।
तो मुझे ये बातें मतलब मैंने कहा हाय अच्छा ये भी मामला है। तो फिर ये मसले हो जाते हैं ना, फिर इसीलिए मैं कहती लड़का लड़कियों को बातें करनी चाहिए आपस में, मौके मिलने चाहिए, क्लियर होने। हाँ हाँ चलो एंड ते पैगाम दियो मतलब बीबियां वास्ते तुसी की एफर्ट कर रहे हो, बहन दियां मामा बहनन की करना चाहिए, साडे मर्दन की किरदार अदा करना चाहिए, फिर वाइंड अप करिए। मर्दों और औरतों दोनों के लिए जो मेरा पेज है द इंडस योगी, उस पे ये है कि मैं योगा सिखाऊंगी उर्दू और पंजाबी में, ठीक है, मतलब बिल्कुल आसान करके। उससे आपकी बहुत सारी जो मसले होते हैं, जैसे कि दिल का मसला हो गया, और भी बहुत सारे मसले होते हैं मर्दों के भी और औरतों के भी। हाँ। तो वो खासकर औरतों पे फोकस्ड है वो, क्योंकि मर्द तो कहीं भी जाके एक्सरसाइज कर लेता है, औरत को जो है ना सही गाइडेंस की जरूरत है। तो वो मैं अपने पेज के थ्रू वो करूंगी। फिर उसके साथ साथ मेडिकली मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर बगैर तहकीक के नहीं होगी, ठीक है, उसके पेपर्स, उसके लिंक्स, सारा कुछ अगर मैंने पोस्ट नहीं भी किया तो मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मैं पैगाम सबको देना चाहूंगी कि आप कोई भी जो आपको इंफॉर्मेशन मिले उसको बगैर तहकीक के कबूल ना करें। अभी कोरोना का है चल रहा मसला, और अभी हम जिक्र कर रहे थे कि वैक्सीन आ गई है, ठीक है, और हमारी जो देसी कम्युनिटी है उसको रिजेक्ट कर रही है कि पता नहीं उन्होंने कोई खुद सुन लिया कि इसमें क्या है क्या है क्या। ऐसी कोई बात नहीं, वो सेफ है, बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जो आपके लिए मसला कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह की बातें जब आप सुनते हो ना, तो पहले जरूर तहकीक किया करें किसी बंदे से जो मेडिकल का है, साइंटिस्ट है, या जो भी उस फील्ड से, उससे पूछ लें कि भाई ये मुझे बात पता चली व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं पर भी, तो आया ये दुरुस्त है कि नहीं। तो ये मैं मैसेज जरूर सबको देना चाहूंगी। और एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपका जो डायलेक्ट है वो बहुत खूबसूरत है, तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे ना एक जुमला सिखाएं उसमें छोटा सा, कि मैं कोशिश करूंगी बोलने की। चलो प्रोग्राम तो पहला मैं कहना मेरा एक जुमला बड़ा मशहूर है, तुसी बस किसी को जितले हाल पूछना होवे ना, तुसी आखा करो मिठियाओ की हाल है, मिठियाओं की हाल है। यानी कि मिठा ये एक फ्रूट है ना, हाँ माल्टे की तरह का वो एक फ्रूट है, मतलब काफी मीठे, हाँ पता है मुझे, गांव में उसका तो बस उसको यानी कि मलेरिया का इलाज भी होता है उससे। वही ते बस ये फिक्रा सी अपने प्रोग्राम में मिठियाओ की हाल है, ये साडे डायलॉग है। चलो थैंक यू सो मच मारिया, अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, तुहाडे टाइम दा बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन मैं दसदा चलना कि आज मारिया दे नाल मेरी मतलब साडी एक और कोलीग, साडी एक और दोस्त जो एंकर भी ने और बड़ी मतलब दबंग शख्सियत ने, वो भी उन्हें आना सी लेकिन कुछ हेल्थ इशू दी वजह तो उन्हें ऐसा ज्वाइन नहीं किया। ते इंशाल्लाह ताला गाए बगाए असी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं और बहुत ज्यादा इस चीज ते क्रिटिसाइज भी किया जाता है, मैं सिर्फ लड़कियां रिप्रेजेंट करना और सिर्फ मतलब अपना जिला या इन चीजा लैके चलदा। ते मैं ये सिलसिला शुरू किया है कि मैं मतलब बीबियां वास्ते भी औरतों वास्ते भी गाए बगाए नशिस्त रखता रवांदा, और अपने दोस्त कोलीग और मारिया और सारे जेडे भी मतलब लोगों नाल मेरा लिंक एक मैं इंशाल्लाह जरूर बुलावांगा, ताकि कोई ना कोई अच्छी गल और मुफीद बातें होंदियां रहन। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अपने अगले मेहमान नाल फिर हाजिर होवांगे। तब तक अल्लाह दा डामिया नासिर ते आखां दा हसदे रहो वसदे रहो ते ऊंचियां टालां च रहो। वस्सलाम।